ले? हाँ, करने दीजिए। अभी इसमें 2 बजने वाला है। हाँ, बस 2 बजे ही शुरू कर देंगे सर। जी। मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल जी। क्लियर है। जी, ठीक। A very good afternoon to all. Uh, I welcome you all once again on the second day of the lecture series on contemporary debates in politics, organized by the Department of Political Science, Vasanta College for Women, Rajghat, Varanasi. Today, it's a proud privilege that today we have with us Professor Abhinav Sharma sir from the Department of Political Science, Banaras Hindu University. Today, he'll be speaking on ethics in administration, the different issues, dimensions, debate relating to this topic. Before inviting Sir to deliver his lecture, I'd like to give a brief introduction about Sir. Professor Abhinav Sharma Sir is working as the professor at the Department of Political Science, Banaras Hindu University. His area of specialization include public personal administration and administrative theory. He has immensely contributed to the field of academics by through his writing, publications, lectures, and various ways. Some of his major publication, one very important publication is his work on service conditions and performance of civil servants, a state perspective. This book came in 2006. Apart from this, he has contributed many papers in reputed national and international journals. And nowadays, we all know that a very important uh, means of learning, learning resources, open educational resources, which makes the promise of education for all, accessibility of education for all possible. And Sir has worked very hard for creating some very important OER. He has worked for EPG Parshal and many other platforms on which he has worked for OER. And in the field of research also, he has contributed immensely. One of very important research work is his major research project on the status of sanitation and water supply under JNURM in Uttar Pradesh, a case study of Allahabad, Lucknow, and Varanasi. It was a UGC sponsored project, and in this project, he was associated as the co investigator. And apart from this academic contribution, he's working in many administrative capacity, and I think many of the students, especially those who are from BMA1, they all must be knowing about Sir because he was one of the coordinators of the admission. So it's our proud privilege to have you with us, sir, today. And we know that you have a very busy schedule, but despite that, you gave us consent, you gave us time. So I welcome you, sir, on the behalf of the Department of Political Science, Vasanta College, and on my personal behalf for today's lecture because sir has to leave at 3. So I think we'll keep lecture for 50 minutes around and then 10 minutes for questions. So I once again welcome you, sir, and now I'll request you to start your lecture. Thank you, Preeti ji. I would like to first express my gratitude and thanks to the departmental colleagues from Department of Political Science, Vasanta College for Women, Rajghat. In the same time, also I'm grateful and thankful to the principal, uh, BCW Rajghat, they have given me an opportunity to interact with you all students on an important topic, ethics in administration. मैं आप सभी का जो है हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो इस महाविद्यालय की प्राचार्या हैं
और जो हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के जो साथी गण हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया है कि मैं प्रशासन में नैतिकता से संबंधित कुछ अपनी बात रखूं. So I am going to talk on this ethics on public in administration, and I have divided my talk into three aspects: what, why, and how. What is ethics in public and in public administration or administration? Why we are talking of ethics in administration, and how ethics can be seen or implemented or executed in administration. तो मेरा जो अब बात आपसे रखूंगा, मैं आपको समझ रखूंगा, मैं 3 भागों में बांटूंगा उसको कि प्रशासन में नीति शास्त्र, आचार शास्त्र या नैतिकता क्या है, प्रशासन में हम नीति शास्त्र या आचार शास्त्र या नैतिकता की बात क्यों कर रहे हैं, और कैसे उसमें ये समाहित कर सकते हैं, कैसे उसमें लागू कर सकते हैं. To begin with, the very term ethics in English has been derived from a Greek word known as ethika, from which English word ethos has been derived. अंग्रेजी शब्द एथिक्स का जो है, अगर आप उसकी जड़ में जाते हैं, उसकी उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के एथिका शब्द से हुई है, जिसका अंग्रेजी वर्जन जो है या उसका अंग्रेजी शब्द जो है इथॉस भी होता है. दैट मीन्स कैरेक्टर और कस्टम, जिसका तात्पर्य अभिप्राय होता है आचरण, व्यवहार, रीति रिवाज. तो सिंपली स्पीकिंग, एथिक्स कैन बी डिफाइंड or described as principles or standards of human conduct. अगर सामान्य शब्दों में हमको नीति शास्त्र, आचार शास्त्र या नैतिकता को समझना है, तो वह क्या है? वह हमारे आचरण के मानक हैं. वह क्या है? वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, वो मानवीय व्यवहार के कुछ मानक हैं. या ये कहा जाए कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का एक खाका है. इट इज नथिंग बट सिंपली अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. Whatever we are trying to do, there has to be certain standards, principles for that purpose. That is the case. If you want to know more about ethics, then we have to also understand the different dimensions of ethics. ये तो सामान्यतः मैंने आपको अपनी बात बताई कि उसके जो एटेमोलॉजिकल मीनिंग है, यानी कि उसका जो जड़वत या उसका जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वो क्या है. इसके आयाम होते हैं. एज अ कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, इसकी संकल्पना की बात करते हैं, उसके अपने आयाम. दे आर मल्टीपल डायमेंशंस, बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स, which is academically speaking or philosophically speaking or speaking in terms of theory. अगर उसके हम थ्योरी में जाते हैं, उसके सिद्धांत में जाते हैं, तो हम उसके 2 दृष्टिकोण दे सकते हैं. There are rather 3 perspectives are there. उसके 3 दृष्टिकोण हैं. First one is the case of teleological ethics. Second is deontological ethics. And third is virtue ethics. टेलीलॉजिकल एथिक्स अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं हेतुवाद, हेतुवाद नीति शास्त्र. और एक है डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कर्तव्य शास्त्र नीति शास्त्र. और तीसरा है वो है वर्च्यू एथिक्स, जिसका हिंदी में अनुवाद अगर होगा उसको कहेंगे सदाचार नैतिकता या सदाचार नीति शास्त्र. टेलियोलॉजिकल teleological ethics, or the word teleology, is basically deals with the something which is a result of our action. हम अपने व्यवहार, अपने आचरण की हम बात करेंगे, तो इस प्रकार का आचरण, उस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए जिसका परिणाम किसी को नुकसान देने के लिए ना हो. That means whatever we are doing, our deeds should be such that
इट शुड नॉट हार्म एनीवन। ठीक है, तो ये वह चीज है जो पॉलिटिकल साइंस में जेरेमी बेंथम ने जब कहा था, क्या, द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ऐसा काम करिए जिससे सबका ही भला हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है, वन वन वंस एक्शन शुड बी सच दैट देयर देयर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन मस्ट बी सच दैट इट दे मस्ट नॉट हार्म द अदर्स। हमारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार का जो परिणाम हो या जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसका परिणाम ऐसा ना हो कि किसका जो है बुरा हो। या कबीर ने कहा कि ऐसी वाणी ना बोलिए जो किसी का नुकसान करते हैं। तो टेलीलॉजिकल मीन्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन, द स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स और वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। यानी कि हमारा जो आचरण हो उसमें कुछ ऐसे मानक हो, कुछ ऐसे व्यवहार, ऐसा ऐसा संहिता हो या ऐसा हमारा व्यवहार हो जो किसी को दुख न पहुंचाए, किसी को नुकसान ना करे, किसी का प्रताड़ना ना हो, किसी का शोषण ना हो। तो अगर उस परिपेक्ष में देखते हैं तो उसको हम लोग हेतुवादी नीति शास्त्र के रूप में देख सकते हैं। इट इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ टेलियोलॉजिकल एथिक्स। TELE, टेलीविजन से टेलीओलॉजिकल। टेलीलॉजिकल मीन्स a kind of a the consequences of the actions. On the other hand, we have deontological ethics, कर्तव्य शास्त्र। ये कहता है, what it says that duty or obligation is very important. Each and every individual has certain duties to perform, and while performing those duties or obligations, the person is behaving in an ethical way. प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं और उन कर्तव्यों का निर्वहन जो करता है या करती है, तब हम कहते हैं वो एथिकल है, वो नीतिवान है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक ऑफ अ family comprises of different members, parents and kids maybe, if you talk of nuclear family, right? Parents and kids, they have their own respective responsibilities. For example, if you take the example, take a case of your age or age group. You are here studying at Vasanta College for Women Rajghat as student of either UG or PG. आप लोग यूजी के या स्नातक या स्नातकोत्तर के छात्राएं हैं और आपका परम कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर रहकर आप पठन पाठन करें। आप अपने डेलीगेसी के हैं, यहाँ शहर में रहती हैं, तो आप पढ़ने आ रही हैं तो पढ़ने आइए और पढ़ाई करके वापस अपने घर चले जाइए। और अगर आप छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास से निकलकर अपने समय पर जो क्लास हो रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वो आभासी क्लास हो या वास्तविक कक्षा हो रही हो, उसमें आपको आना चाहिए। बट सपोज इफ यू आर नॉट sincerely taking your classes online and offline, and your parents somehow get the knowledge of that, then you are doing some kind of unethical practices. So deontology means duty based, कर्तव्य आधारित। टेलियोलॉजी मीन्स डिस्टेंस और द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि आचरण की जब बात करते हैं, व्यवहार की जब हम बात करते हैं, तो उसमें दो दृष्टिकोण निकल कर आ रहे हैं। एक ये कहता है कि ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Duty will tell us what is morally right. Duty will tell us the how to carry our action. On the other hand, duty is not only important. What is the consequences of the duties which have been performed? हमारे जो ड्यूटी हमने की है उसका क्या परिणाम निकला? For example, if a person has been given the responsibility to provide blood in a blood bank, and normally the time of the particular individual who has been given the responsibility to provide blood to the concerned person, who can be the relative himself, is to work from 10 to 5, 10 a.m. to 5 p.m. And now what has happened, from 5 p.m. another shift will start and some other person will come to join and take over his responsibility.
मैं एक उदाहरण देता हूँ, ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में सामान्यतः एक व्यक्ति का जो शिफ्ट है या समय काल है, समय जो सारणी है वह 10 से 5 है। तो 10 से 5 के मध्य उसने काम किया, लेकिन 5 बजे जो है किसी और की शिफ्ट में ड्यूटी लगी है, उसको आना है। इन द मीन वेल वन पेशेंट कम्स और रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट कम्स एंड आस्क और रिक्वेस्ट फॉर द ब्लड. He says no, you have to wait. The relative of the patient is saying that no, our patient is very critical and he need blood. हमारा जो पेशेंट है, हमारा जो मरीज है, बहुत जो है वो क्रिटिकल है, यानी कि उसकी स्थिति बहुत नाजुक है, हालात नाजुक है, हमको आप खून दे दीजिए। वो कह रहा है कि 5 बज गया, हम नहीं दे पाएंगे। हियर नो द टेलियोलॉजिकल perspective of ethics demands that a person must help even beyond his working hour of the shift, because a life of an individual depend upon his or on his discretion of providing blood. ड्यूटी ये आपका हेतुवाद कहता है कि आपने 10 से 5 का समय ठीक है, लेकिन 10 से 5 का समय जो है आप लिया है, तो 5 मिनट अगर रुक जाएंगे और उसको आप खून दे देंगे, खून की बोतल दे देंगे, तो हो सकता है कि उसके जो मरीज है उसका जीवन बच जाए। बट डियोलॉजिकल ऑफ एथिक्स कहता है क्या कि आप जो है कितने देर तक इंतजार करेंगे, ऐसे और लोग आते रहेंगे और दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों का उपयोग उसको करना पड़ेगा। और साथ साथ में ये तीसरा परिप्रेक्ष्य आता है जिसको हम लोग कहते हैं सदाचार, आचार शास्त्र या नीति शास्त्र। इट इज नथिंग बट वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू इज नथिंग बट एन एक्सीलेंट ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। वर्च्यू या गुण या सद्गुण, सद्गुण क्या है? एक व्यक्ति के चरित्र में वह होने चाहिए समय पे काम करना, समय पे खाना खाना, इसका इस बात करते हैं। अपनी देखभाल करना, दूसरों की देखभाल करना, बड़ों का सम्मान देना, बड़ों की बात सुनना, अपना सोच समझ के काम करना। कहने का तात्पर्य है कि देयर हैज टू हैव सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन फॉर द रीजंस बिहाइंड एक्शन। डियोन्टोलॉजी बात करता है ड्यूटी की। टेलॉजिकल यानी हेतुवाद कहता है कि किसी भी कार्य का जो परिणाम होगा उसके परिणाम को ध्यान में रखकर आपको निर्णय लेना है। उधर जो कर्तव्य शास्त्र कहता है कि नहीं, कर्तव्य का निर्वहन करना है। लेकिन साथ समय तीसरी बात का भी जो है प्रमुखता से हमको ध्यान रखना है कि चाहे कर्तव्य हो, चाहे जो कर्तव्य का परिणाम हो, हमको उसके पीछे का जो है अपना तर्क भी देखना है, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। वर्च्यू एथिक्स डील्स विद द विजडम। By wisdom I means the reason or the logic behind which I am going to use both the duties and the consequences of duties. यदि अगर मैंने आपके यहाँ 2 से 3 का या 2 से 3.5 बजे का समय दिया, तो कर्तव्य शास्त्र ये कहता है कि मैं 2 से 3.5 के बीच या मध्य आपके लिए मैं उपलब्ध रहूं, आपके समक्ष में रहूं और मैं व्याख्यान दूं। ये 2 से 3 के बीच ये भी कहता है कि अगर मैं व्याख्यान दे रहा हूं, लेकिन व्याख्यान का जो है मेरे जो देने का किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। If I am available between 2 to 3, it is a part of my duty. But between 2 to 3, what I have spoken to you, you are not able to grasp or understand. Then, as per the teleological approach, it is useless for you. उसकी यूटिलिटी नहीं आपके लिए। बट वर्च्यू एथिक्स कहता है कि अगर आपने समय दिया है, आप समय पे जाइए और साथ साथ में आप इस प्रकार का बात रखिए ताकि जो आपका ऑडियंस है, जो श्रोतागण है, उसको समझ पाए। So what I want to convey, if you want to understand ethics, we have to focus on the etymological meaning of the term ethics. उसका जड़ में जाना पड़ेगा। Then we can also focus on the literal meaning of the term ethics. Then next we have to focus on the dimensions of ethics. तो अब तक मैंने जो बात कही वो थी what is ethics. एथिक्स की जब मैंने आपसे बात की तो मैंने उसको आपको परिभाषित नहीं किया। I have not given any definition as such. I have simply focused on its roots. I have simply focused on the origin of the term ethics in English. यूनानी भाषा से आया है एथिका इथॉस, जिसका मतलब होता है कस्टम, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर।
फिर मैंने बताया कि इसके 3 आयाम हो सकते हैं, टेलीलॉजिकल हेतुवाद, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। दूसरा आता है कि काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो काम हमको एक कर्तव्य के रूप में दिया गया है, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच, कर्तव्य शास्त्र। और तीसरा पहलू है वो है वर्च्यू एथिक्स। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। आज से बहुत वर्षों पहले एक चीन के दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का ये कहना था कि इफ यू आर गोइंग टू फाइट अ वॉर, we can fight a war with few arms and a few this uh, eatables. But if there are no man of character, then we can lose the war in like nothing. हम भूखे, हमारी फौज भूखे रह सकती है लड़ाई के लिए, बिना हथियार के लड़ सकती है लड़ाई के लिए, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर नहीं है, अगर उसमें जो है सत्यनिष्ठा नहीं है, सच्चारिता नहीं है, उसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। भारतीय परंपरा में भी जो है नीति शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है या प्रयोग किया गया है वो न्याय से किया गया है। The term नीति in Indian tradition has been used for justice. That means ऐसा काम कोई हम ना करें जो न्यायोचित ना हो, which is not well, which is not deserving. So similarly, if you talk of ethics and administration, we can apply these dimensions. अगर हम प्रशासन में जो है नीति शास्त्र आचार शास्त्र की बात करते हैं तो त्रिआयामी जो दृष्टिकोण है, 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। प्रशासन, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? सिंपली स्पीकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इज टू लुक आफ्टर पीपल, टू लुक आफ्टर, टू मैनेज अफेयर्स, व्यवस्था की देखभाल, सिस्टम की देखभाल, प्रणाली की देखभाल। देखभाल से क्या तात्पर्य है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द केस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन which you might have studied or you are going to study in BA 5th semester or for that matter in MA. Public administration is simply means to look after people, व्यक्तियों की देखभाल, जनमानस की देखभाल, to manage public affairs. अब यहाँ ये बात आती है कि ये प्रशासन में नीति शास्त्र क्या है? प्रशासन नीति शास्त्र ये कहता है कि whatever obligations, duties which have been given to the individual civil servant or public administrator, they must be able to perform it. They must not only perform it, they must perform as per the required outcomes. ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिसके चलते जनता को, आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़े. They must not perform any obligation or duty which can create harm to any individual citizen. Virtue ethics says that they must have some character, they must have certain values, they must have some kind of, must have some practical wisdom. For example, nowadays our national capital is being under tremendous pressure because of the farmers agitation. किसान आंदोलन चल रहा है और राष्ट्रीय राजधानी को घेरने का प्रयास किया गया. And who are the first persons to deal with this thing? The police administration, the police force. पुलिस बस वहां खड़ी हुई है. अब एथिक्स कहता है, नैतिकता कहती है, नीति शास्त्र कहता है कि ड्यूटी क्या है? दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू एंटर दिल्ली. वो कहता है क्या कि किसानों को ये है, सरकार ने कहा है कि उनको दिल्ली नहीं आने देना है. Only few of them can come. Few of them or few of those representatives which the government would like to talk, they can be allowed. Otherwise, no one be allowed. ड्यूटी ये कहता है. टेलीलॉजिकल कहता है कि आप उनको कैसे रोकेंगे? आप रोक रहे हैं. सपोज व्हाट हैपन, द फार्मर्स दे आर एडमेंट. किसान जो है वो जिद पड़े हुए हैं कि हम नहीं घुसेंगे. और इसी बीच क्या होता है, some righteous behavior, some unlawful activities take place and the police is compelled to लाठी चार्ज. कुछ ऐसा हो जाता है जो अवैधानिक है और उसी में जो है कहीं पे कुछ पथराव कुछ हो जाता है, उसके बाद जो लाठी चार्ज हो जाता है. तो हम पूछेंगे भाई आपका कर्तव्य कहता है कि रोकना, लेकिन लाठी चार्ज क्यों किया आपने? लेकिन ये कहते हैं कि द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, सपोज ये आपको किसने हक दिया है कि आप पुलिस की गाड़ियों पर जो है आग लगा दीजिए? ये किसने आपको हक दिया है कि पुलिस वालों पर आप पत्थर फेंकिए?
ये आपको किसने हक दिया है कि आप ऊपर जो है आप पेट्रोल पंप फेंकिए? सो वर्च्यू एथिक्स सेज practical wisdom, when to what stop, when to prevent the farmers, or so what I want to convey, ethics in administration is nothing but it is a usage, it is the application of these three important dimensions to deal with public, जनता से या लोग से उनका व्यवस्था के लिए जो प्रशासन बनाया गया है एक सिस्टम के रूप में, एक प्रणाली के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, वो कैसे करता है. Next part is why I am talking about this ethics in administration. Number one, I am talking about ethics in administration. More specifically, I am dealing with public administration because administration as an activity is present in all types of organizations. Public और प्राइवेट इज इमटेरियल. मैं आपको बता दूं, प्रशासन एक क्रिया के रूप में, गतिविधि के रूप में समस्त प्रकार के संगठनों में व्याप्त है, पाया जाता है, चाहे वो निजी संगठन हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन हो, या आज के संदर्भ में नागरिक समाज संगठन हो, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. Simply speaking, administration is prevalent in public organization, in private organization, in NGO or non-governmental organization, and for that matter, even in civil society organization. Organization is nothing but the collective conscious effort by individuals to attain certain goals. It can be held in a, it can be done in an informal manner, it can be done in a formal manner. संगठन एक साझा सोचा समझा हुआ प्रयास है, सामूहिक प्रयास है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, चाहे वो औपचारिक परिस्थितियों में हो, चाहे वो अनौपचारिक परिस्थितियों में हो या व्यवस्था में हो. Here, if we are talking about this ethics in administration, or for that matter public administration, why? Because public administration deals with our life. Our life means citizens' life. प्रत्येक नागरिक की जीवन जो है उसका जिम्मेदारी है. Even aliens' life is important for administration. I am not talking about extraterrestrial. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी तक कहा गया है कि जो अंतरिक्ष से कोई आएगा. हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे देश के नागरिक भी नहीं है लेकिन मेहमान हैं, विदेशी मेहमान हैं, उनके भी देखभाल करना है प्रशासन को. फॉर एग्जाम्पल, डीएम हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू deal with the issues of law and order, of safety security of individual. प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति की जो जिला में आ रहा है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देशी हो, चाहे वो स्थानीय हो, उसको देखभाल करना है, देखना है, उसकी जिम्मेदारी है. और अब हम बात करते हैं कि why? Because most of the civil servants, all the civil servants, if you take the case of India, इंडिया में जो सिविल सेवक हैं, जो लोग प्रशासक हैं, उनके जो वेतन है वो कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 266(1) of the Indian Constitution, the Consolidated Fund of India. भारत के संविधान में अनुच्छेद 266(1) जो है वो बात करता है क्या? भारत की संचित निधि या समेकित निधि. उस संचित निधि, समेकित निधि में जो टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम है या रेवेन्यू है, करीय स्रोत या गैर करीय स्रोत है, उसकी वजह से हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक तंत्र के जो लोग हैं उनका वेतन दिया जाता है. सो वी हैव एवरी राइट टू से दे मस्ट बिहेव इन एन एथिकल मैनर, क्योंकि वो जनता की देखभाल के लिए है. अगर हम ये कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रशासन या शासन हमारी देखभाल करेगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें नैतिकता हो. If we do believe in this particular statement, that it is the administration which will look after our life from birth या cradle to grave, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो है चाहेंगे कि प्रशासन देखभाल करें. कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, सामान्यतः हम ये मांगते थे कि हमारे लोग का जो जन्म हो रहा है, अगर घर को छोड़ दें
तो सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरी में एक बात हम वेतन लेते हैं, वेतन के बाद पेंशन लेते हैं, और फिर जो है काल के ग्रास में समा जाते हैं. सो राइट फ्रॉम आवर बर्थ till our death, we are dependent, we try to be, we need some kind of care from the state, or state government and administration, they are intricately related. राज्य शासन और प्रशासन वो गुथे हुए हैं, आपस में उनका संबंध है. तो इसीलिए जो है प्रशासन में नीति शास्त्र का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है. Secondly, large number of civil servants, they have the financial power. जो उच्च पदों पर बैठे सिविल सेवक हैं या लोक प्रशासक हैं, उनके पास वित्तीय शक्ति भी, अधिकार भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बजट. बजट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कंट्रोल. बजट इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द पीपल. बजट एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है. किसके लिए? लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. तो जिसको बजट की संबंधित जिम्मेदारी दी गई है, जो पूरे देश के आय और व्यय का प्रबंधन करेगा, अगर उसमें नीति शास्त्र नहीं होगा, उसमें नैतिकता नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा? कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार से जो मधुमक्खी है वो फूलों का रस लेकर अपने वहां जा रही है, कहाँ जा रही है? छत्ते पर जा रही है, और बीच में जो है वो रस का चख करेगी नहीं करेगी वो कहना मुश्किल है. उसी प्रकार से जो प्रशासक हैं वो सरकारी खजाने की, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वह उसका रक्षण करेंगे या उसका भक्षण करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है. इसलिए नीति शास्त्र या नैतिकता होना अति आवश्यक है. जस्ट लाइक इन केस ऑफ हनी बी who collects nectar from the various flowers for the purpose of preparation of honey, and we cannot make a distinction whether that particular honeybee is also taking some nectar from the flower for herself instead of depositing at this beehive. Similarly, most of the administrators who have the responsibility to look after public money in the form of budget or other related aspects, they must have certain kind of highest moral standards. This has been the perspective promoted by Kautilya, Vishnugupta और चाणक्य in his famous treatise अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में उन्होंने ये कहा है, ये होना चाहिए. ठीक है. तो कहने का तात्पर्य है कि पब्लिक मनी, जनता का पैसा, वो उसका करेंगे. Third thing is that since they are meant for the management of public affairs, they are there to deal with public. उनका नाम ही क्या है? लोक सेवक या सिविल सेवक, नागरिक सेवक. The term civil servant has been used to make a distinction between the armed forces and the non-armed forces. सशस्त्र बल और गैर सशस्त्र बल जो है उससे भेद करने के लिए नागरिक सेवक या सिविल सेवक का जो है शब्द का उपयोग किया गया. So civil servants are there to look after the basic or those public utilities without which our life will not be complete. वह मूलभूत सुविधाएं जिसके बिना हमारा जीवन जीना संभव नहीं होगा. वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यू नेम इट, एजुकेशन, हेल्थ. तो वो जो है उसके लिए ये सिविल सेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया है. कहीं कहीं पे जो है लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल भी किया गया. तो इसीलिए जब इतनी महत्वपूर्ण सुविधाएं जो है, जन सुविधाएं उनको देनी है, तो उसमें जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स या उनमें वह गुण या सद्गुण या उनके ड्यूटीज के कॉन्सिक्वेंसेस, अगेन टेलियोलॉजिकल, हेतुवादी, इडियोन्टोलॉजिकल, कर्तव्य शास्त्र आधारित, और वर्च्यू एथिक्स या सदाचार या सद्गुण होना चाहिए. Now the third thing is how we can have this ethics in public administration or administration. ये नीति शास्त्र जो है लोक प्रशासन में या प्रशासन में कैसे हो, ये कैसे संभव है? Normally speaking, if you talk of administration, any public administration,
or any system of administration throughout the world, we have to see certain factors. अगर हमें प्रशासन में नीति शास्त्र की बात करनी है तो कुछ प्रमुख कारकों की बात करनी है. We can divide them into three: institutional factors, personal factors and organizational factors. अगर प्रशासन में नीति शास्त्र की बात करनी है तो तीन प्रमुख जो कारक हैं, फैक्टर हैं, उनका हमको ध्यान देना होगा. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, संस्थागत कारक. What mean by institutional factors? Institutional factors here simply means the law of the land. उस देश विशेष का कानून, rules, regulations. Do we have certain specific laws which deal with the ethics? For example, we have what code of conduct. हमारे पास आचार संहिताएं हैं. In case of India, we have got different types of civil services, and civil services are an important component of public administration. We have all India services, we have got central services, we have got provincial civil services, and sometimes we also say we have local civil services. अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र सेवाएं, सिविल सेवाएं, प्रांतीय सिविल सेवाएं और स्थानीय सिविल सेवाएं. प्रत्येक सिविल सेवा का अपनी एक आचार संहिता होती है. For each and every civil service is a code of conduct, and that code of conduct is nothing but it is prepared, it is enacted, is a law because of the constitutional provision, Article 309 of the Indian Constitution. अनुच्छेद 309 जो संविधान का है, भारतीय संविधान का है, वो कहता है कि वह सारे कानून जो कि सिविल सेवकों को या उनके व्यवहार को संचालित करेंगे या निर्धारित करेंगे, उसका जो है अधिनियमन होगा. दे विल बी इनैक्टमेंट, कानून बनेगा. फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अखिल भारतीय सेवाओं के लिए और ये आपके जो केंद्रीय सिविल सेवाएं हैं उसके लिए भारतीय संसद जो है जिम्मेदार है थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वही अंत में हस्ताक्षर करेंगे तभी कानून बनेगा. In the case of provincial civil service or PCS, प्रांतीय सिविल सेवाओं के लिए we have their respective legislative assemblies, उसके अपने विधान मंडल हैं, वो तय करेंगे. For local bodies, the state legislature is responsible. Of course, we have town meetings, town hall, वहां की भी व्यवस्था होती है, इसमें कर सकते हैं. तो कुछ जगह वो छूट दी, कुछ जगह नहीं गई. कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक के लिए अलग से एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है. ठीक है. सेकेंड इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज नोन एज पर्सनल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारक. दैट मीन्स मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास. The personal factors again are dependent upon the processes of socialization and acculturation. व्यक्ति विशेष जो है दो प्रमुख प्रक्रियाओं से गुजरता है अपने जीवन में, समाजीकरण और संस्कृतिकरण, acculturation. The process of socialization begins with family. जैसे व्यक्ति एक जो है परिवार में जन्म लेता है या लेती है, उसका समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. Later as we grow, with the interaction of our peer group, our friends, school, teachers, then university, college, सबसे होता है. इतने लोगों से हम जुड़ते जाएंगे, संवाद करते जाएंगे, वो ये बढ़ता जाएगा. And acculturation deals with the assimilation of different values from different cultures or way of life. विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से संपर्क में आते हैं, वो सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं. लेकिन संस्कृतियों से हम जो है परिचित होते हैं, उससे सीखते हैं, समझते हैं और उसको अपनाते हैं. And this help. In case of administration, we also have this capacity development or training. समय समय पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है विभिन्न संस्थाओं में. At that time of pre-entry training is there.
प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाता है. That is, before they join civil services, they are being given some training, and that training also basically again is a part of their moral development. For example, I don't know how many of you have studied in ICSE board. I myself have been study student of ICSE board in the high school and intermediate. मैंने 10वीं और अपनी 12वीं कक्षा जो है ICSE बोर्ड से की है. There used to be one particular period known as moral science period. हमको जो है अलग से एक मॉरल साइंस की कक्षा होती थी जिसमें विभिन्न जो है कथाओं को, कहानियों को हमको सुनाया जाता था और उसमें सीख होती थी. Leave it. We have certain books in Hindi and English which in the end has some kind of moral stories. Moral. प्रत्येक कहानियों में, कथाओं में, जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे स्कूलों में, विद्यालयों में, उसमें उसका होता था कि इसका कथा इससे क्या सीखते हैं. In each and every religion we have this tradition of fables. प्रत्येक धर्मों में हमारे पास ये परंपरा रही है, किससे कहानियों की रही है, और साथ साथ में ग्रंथ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव पंचतंत्र. पंचतंत्र इज देयर इन इंडियन ट्रेडिशन. हितोपदेश है. फिर साथ साथ में आप देखेंगे ईसप फेबल्स है, अरेबियन नाइट्स है. तो ये ऐसे वो ग्रंथ हैं सभी धर्मों में जहां पर हमको वो कहानी किससे सुनाए जाते थे, क्यों सुनाए जाते थे, ताकि हमको मॉरल डेवलपमेंट, हमारा नैतिक विकास हो. So that also helps in the not only development of an individual personality, but also it helps in the development of some ethical standards or perceptions in a civil servant, or for that matter public administrator or administrator as such, because administrator is also a part of society. प्रशासक कौन है? प्रशासक जो है स्वयं समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, वहीं से आया है. तो उसका जो सामाजिकरण की पृष्ठभूमि रही है, उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, उसका असर आजीवन उस पर पड़ेगा. लेकिन साथ साथ में समय समय पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रवेश के पूर्व, प्रवेश के समय, प्रवेश के बाद, उसका असर पड़ेगा. Next important component which affects, which helps in the formulation of ethics, or which helps in understanding ethics in administration are the organizational factors. Code of ethics in a particular organization. प्रत्येक संस्था में या संगठन में उसके खुद के अपने कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स हो सकते हैं. एक तो ऐसा हुआ कि सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता, और एक ये होता है जहां जिस संस्था में, जिस इकाई में सिविल सेवक कार्यरत होंगे वहां का जो है आचार संहिता. फॉर एग्जाम्पल, in our university that happens to be BHU, Banaras University, we have one office of finance office. हमारे विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक पद है, वो है वित्त अधिकारी का. Normally our finance officer is basically a person on deputation. At present Mr. Abhay Thakur is a finance officer and he belongs to Indian Revenue Service. वर्तमान में हमारे जो वित्त अधिकारी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, वो अभय ठाकुर जी हैं, और वो भारतीय राजस्व सेवा के हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर रैंक के हैं. So generally he, as a civil servant, he is a IRS official and he will be guided by the code of ethics of that particular service. उनके लिए जो भारतीय राजस्व सेवा के लिए या जो एक केंद्र सेवा है, केंद्र सेवाओं की जो नियमावली है, जो रेगुलेशन है, जो रूल्स है, उसका उन पर असर, उनका उस पर जो है लागू होगी. बट एट द सेम टाइम ही हैज टू आल्सो बी गाइडेड बाय द कोड ऑफ एथिक्स फॉलोड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहां पे वे कार्यरत है, वहां के भी जो अपना नीति शास्त्र संहिता है, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा. और साथ साथ में व्यक्ति विशेष में जो उन्होंने सीखा अपने जीवन में नैतिक विकास, उसका भी उनको ध्यान रखना है. और जो जिस सेवा को वो बिलोंग करते हैं, जिससे वो हैं, उसको भी उनको देखना है. कहने का तात्पर्य है पर्सनल फैक्टर्स is a part of modern development, or the organizational factor, the person or individual when he is working, performing his duty, and the institutional factors, if there is separate code of ethics, then it is to be there. इसको देना है. लेकिन यहां तक बात जो है वो समाप्त नहीं होती है.
अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक व्यक्ति या लोक प्रशासक आचार संहिता को तोड़ता है, if there's a break in that code of ethics or the character of a person is not up to the mark or the integrity is questionable or the organizational code of ethics is not being followed, then there has to be presence of accountability tools. जवाबदेहिता की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, अगर कोई नियम तोड़ा गया है, अगर किसी प्रकार का जो अनुशासनात्मक अनुशासन को भंग किया गया है, अनुशासनहीनता की गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, और उसके लिए चाहिए मॉनिटरिंग, निगरानी। दिस मॉनिटरिंग हैज टू बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी दोनों होने चाहिए। इन केस ऑफ सिविल सर्वेंट्स आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, ओम्बुड्समैन, लोकपाल। This ombudsman office, which had been struggling for so many years to come into existence, came into existence only few years back, maybe 2017 or 18. 1966 से प्रयास शुरू हुआ था कि भारत में एक लोकपाल नामक संस्था हो। लोकपाल वह संस्था जो कि व्यक्तियों की, नागरिकों की प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित जो शिकायतें हैं उसका सुनवाई करेगी और निपटारा करेगी। Because the common courts of law are already overburdened with the other routine criminal and civil matters. They might not have that time to deal with the consequences of administrative inaction or action. प्रशासनिक कार्रवाई या प्रशासनिक जो शिथिलता का जो है उसका समय ना होगा और नागरिकों में समस्या बढ़ेगी। तो ये जो है, इसके लिए जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। उसमें से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक्सटर्नल में आपका ये है लोकपाल। इंटरनली स्पीकिंग, वी आल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग जैसे कि पुलिस वाले जब पकड़ते हैं किसी अपराधी को तो वो सीधे बजाते हैं ताकि वो इंगित करें कि चोर भाग रहा है, बदमाश भाग रहा है, उसको पकड़ना है और आप पकड़ने में हमारी सहायता करिए। सिमिलरली हिंदी में इसको कहते हैं भ्रष्टाचार सचेतक या सचेतन। If there is any kind of corruption or corrupt practice or malpractices going on in an organization or in administration, the insider or the outsider might reveal it to a neutral body. तो जो पहले से कार्यरत व्यक्ति है, जो संगठन में काम कर रहा है या संगठन के बाहर है, वह भ्रष्टाचार सचेतक के रूप में इसको इंगित कर सकता है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव गॉट दिस ऑफिस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जहां पर व्यक्ति विशेष जो है अगर लगता है कि किसी भी सरकारी इकाई में या व्यवस्था में भ्रष्टाचार है तो उसकी सूचना वो देगा, और राज्य की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी या सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका सुरक्षा वो करे। It is responsibility of the state to secure the life and property of the individual whistleblower who has blown the whistle against the unethical conduct or standards which are being done in the particular organization. तो ये दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे कहा गया है कि there has to be professionalism in civil services or in administration. प्रशासन में जो है व्यावसायिकता होनी चाहिए। What do you mean by professionalism? Each and every profession has got its own codes. उनके अपने जो है क्या है आचार होते हैं, संहिताएं होती हैं जिसका उनको अनुसरण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सालों पहले मैक्स वेबर जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था that we need a kind of an ideal type of organization which is based on legal rational model. एक वैधानिक तार्किक प्रतिमान की बात की थी, based on legal rational authority, whereby there will be written set of rules, hierarchy, impartiality, anonymity, impersonality, ये सब बात उन्होंने रखी कि निष्पक्षता हो, तटस्थता हो, न्यूट्रलिटी हो, समानता हो, व्यक्तिगत हो। तो उसी के मानकों को कहा गया कि आप फॉलो करिए।
लेकिन याद रखिएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू set standards. The most important standards which is to be set by is none other than the leadership. अगर नेतृत्व जो है वो कमजोर है तो उसके नीचे जो जो अधीनस्थ हैं उसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा. So leadership is an important aspect of maintaining ethical standards in public life. सार्वजनिक जीवन में अगर नीति शास्त्र की बात करनी है या नैतिकता की बात करनी है तो जो नेतृत्व है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें वह लीड करने का, अगुवाई करने का, इनिशिएटिव करने का, तब उसमें अंतर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ वर्षों पहले संयुक्त साम्राज्य में, यूनाइटेड किंगडम में एक कमिटी की रिपोर्ट आई, नोलन कमिटी, NOLAN, नोलन कमिटी. उस कमिटी का नाम ही था द कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ. सार्वजनिक जीवन में कुछ मानक होने चाहिए. और इसके बाद में अपनी बात समाप्त करूंगा. आपके जो प्रश्न हो सकते हैं मैं उसको कोशिश करूंगा जवाब देने की, उत्तर देने की. So in 1994-95, this report came of this Committee on Standards in Public Life, headed by Lord Nolan, NOLAN. नोलन की अध्यक्षता में जो समिति बनाई थी 1994 में, उसका प्रतिवेदन, उसका रिपोर्ट 1995 में आया. कहां पर? इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में. तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसके 7 सिद्धांत दिए, 7 प्रिंसिपल्स. द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता. That means the holders of public office should act solely in terms of public interest. जो सार्वजनिक पद धारक हैं उनका जो है कार्य ऐसा हो, उनका जो है कर्तव्य निवारण इस प्रकार से हो कि वह जनहित या लोकहित में जो है वो आप उसमें काम करें. निस्वार्थता. Second important principle or value which they have focused is on integrity, satynishtha. That each and every administrator, a public administrator, or anyone who is holding public office must place themselves under any, must avoid placing themselves under any obligation to people or organization that might try to inappropriately influence them in their work. अगर ऐसा कोई कार्य वो कर रहे हैं, उस कार्य से चलते उनका किसी से ऐसा संबंध होता है, संपर्क होता है जो उसको कार्य को बाधित करेगा, उससे बचना है. इंटीग्रिटी की बात आती है. थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता. सो दे मस्ट कैरी आउट द पब्लिक बिजनेस विदाउट एनी फेवर. कि ना भी किसी पक्षपात के, भेदभाव के, उनको सार्वजनिक पद का जो है अपना उपयोग करते हुए अपना कर्तव्य निर्वहन करना है, चाहे वो अवार्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, पब्लिक अपॉइंटमेंट हो, या किसी को रिकमेंड करना हो, तो कहीं नहीं. नेक्स्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता. That means the holders of public offices are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office. ये RTI क्यों आया है? सूचना अधिकार इसलिए आया है कि जो काम वो कर रहे हैं, कौन जो प्रशासक है, उसका परिणाम क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए. उसी से जुड़ा है अकाउंटेबिलिटी. और नेक्स्ट जुड़ा हुआ है ओपननेस, खुलापन. They should take decision in a transparent manner. फिर है honesty, ईमानदारी. Holder of public office should be truthful. सच्ची तरीके से बात करें, सच्चे ढंग से बात करें, ईमानदारी से काम करें. Last but not the least, leadership. Holders of public office should exhibit these principles in their own behavior. जो कहा गया है उनके खुद के स्वयं के व्यवहार आचरण में दिखाई देने चाहिए. इन कुछ बातों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. I would like to stop here and then will like to invite certain questions or queries. Thank you. Thank you very much, sir. I must say it was a seamless and well needed presentation because you did so well with the issues of what, why, and how of
ethics in administration. It is a very beautiful blend of the philosophical dimension, the practical issues, and everything. I must thank you, sir. So now we'll take up a few questions. Some students have posted in chat box, so I'm reading it out, sir. Some Okay. important questions because I know we have time constraint. So one important question is by Nagma. She is asking that in administration we use three terms: administrative disobedience, ethics of neutrality, and ethics of independence. How these three terms are different from each other. Just now I have told the students that most of the time the ethics in administration is focused on code of conduct or ethical code of conduct, rules, regulations, procedure. So classically speaking, traditionally speaking, administration or administrator was bound by these rules, regulations, procedures, and code of conduct. Still now, it is being followed. If those standards or codes which are not being followed in the performance of the obligations or duties of a civil servant, then we tend to say it is nothing but an issue of disobedience, which calls for some kind of action. And if we talk of another term which is being used most commonly is the term administrative ethics, isn't it? Priti ji? Yes, The sir. next term, It was, sir, ethics of neutrality. ethics of neutrality. Yeah, ethics of neutrality is basically a term which is being often quoted due to the contribution of Max Weber, when he says that the civil servant should be a very neutral in that sense that whomsoever comes to power, here he indicates that suppose if talk of elected government, then elected government in democratic setup, we have political executive. So whomsoever comes to power, the civil servant or the administrator or public administration personnel must not be what politically affiliated in that sense. That means simply he or she should go by the written rules. Written rules here means the orders or instructions which have been given to him or her. Recently, one of the judgment of the Supreme Court of India clearly says that don't follow the whims and fancies of the political executive. You must follow what is written in black and white. So in that sense, it says ethics of neutrality. And this ethics of neutrality means nothing then other than the code of conduct, rules, procedures, or standards which are already mentioned or available. And I have told you it is based on the institutional or personal or the organizational perspective. Okay. Now the third term which she has asked me to clarify is, Priti ji? It is ethics of independence. Independence. Yeah. The issue of independence deals with the expertise of a civil servant. If the political executive, or if we feel that civil servants are experienced, for example, normally the tenure of a civil servant maximum is 40 years. 21 years is the age of entry in civil services in India, if you talk of Group A, and 60 years is the age of retirement. That means between 21 years to 60 years, that is 40 years or four decades, that gentleman or lady which has served the country in different positions at different levels, from district level, from division level to the government of India level, then that experience and expertise which she or he has developed, that space must be given to her or him to perform his various obligations at different levels. If that is not being given, then what will happen? It will create problem whereby he or she cannot perform his obligations without any this pressure. So independence from that excessive control, which the then president, political scientists, which led to the emergence of separate discipline of public administration, talked about that it is raining. It is harder to frame the it is easier to frame the constitution than to run one. So unless and until the civil servants are given the space or the time or if they are not able to perform the obligations without any undue pressure or control, then how they will
able to show their talent or expertise. That's it. Okay, thank you, sir. Now, there are two more questions. We'll take up two only because we have to wind up by 3. So one question is, students are posting so many questions that, 1 second, sir. One is, Rohini is asking, sir, there should be professionalism in every civil services. How can we relate and where shall we put this act in 3 kinds of ethics? Very good question. पहली बात यह है कि मैं इसका थोड़ा हिंदी में जवाब दूंगा, इंग्लिश में दोनों जवाब दूंगा, क्योंकि अभी किसी विद्यार्थी ने कहा कि इसका जो मटेरियल है, इसका जो पाठ्य सामग्री है वो कहाँ से मिलेगी, कहीं जल्दी मिलती नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि नीति शास्त्र जो है कोई ऐसी घुट्टी नहीं जो पिला दी जाए। कितनी भी आप आचार संहिता बना लीजिए, कितने भी कोर्स ऑफ एथिक्स बना लीजिए, कितने रूल्स रेगुलेशन बना लीजिए, लेकिन व्यक्ति विशेष किन परिस्थितियों में काम करता है इस पर निर्भर करता है। It is very important that we have to also look into the circumstances under which a civil servant or the administrator is going to perform its obligations. For example, अगर वो परिस्थितियां वो अनुकूल नहीं है और उसको काम करना है और वो कहा जा रहा है कि प्रशासन में कभी ये सिखाया नहीं जाता है कि don't come with the problems, come with the solutions. Public administration, sometimes people say it doesn't have any theory, it is very incoherent, it is made up of nut and bolts. प्रशासन जो है उसका खुद अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह तो राजनीति की परछाई में रहता है, ये कहा जाता है। तो अगर नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि राजनीति में नीति की बात मत करिए, it is very difficult to talk of ethics in politics, then if similarly administration is basically a thing of what simply following the orders. प्रशासन में या प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहा जाता है कि आप समस्या तो हमेशा रहेंगी, समस्या लेके मत आइए, समस्या का निवारण बताइए क्या है, डोंट कम विद द प्रॉब्लम, कम विद सॉल्यूशंस। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि इसमें नीति शास्त्र जो है इसका कोर्स बहुत सारे होते हैं, इसमें कैसे क्या किया जाता है, वो क्या कही थी प्रीति? What she was about to convey? She was asking that there should be professionalism in every civil services. How can we relate and where shall we put this act in 3 kinds of ethics? Professionalism again is difficult in case of civil services. First, the issue is, can we call public service a professional service? Just like doctors or medical service, just like legal service, or just like any kind of chartered accountant service. क्या हम लोक सेवा को या लोक प्रशासक को या सिविल सेवक को उसी समान मान सकते हैं जिस प्रकार से एक अधिवक्ता को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या एक हम चिकित्सक को मानते हैं? Can we do it? The big question mark. It is not that easy. It is not that easy in the sense that if we have MCI, Medical Council of India, if we have got BCI, Bar Council of India, if we have got ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, we don't have any such body like this which can say, yes, these are the professional standards. Though we have IITA, Indian Institute of Public Administration, we also have Indian Public एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन, हमारे एसोसिएशन बना हुआ है, लेकिन क्या वो इस प्रकार का संघ है जिस प्रकार का जो है मेडिकल काउंसिल है या बार काउंसिल है, जो कहे कि साहब ये करे और ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उसके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये इसको अगर आप उससे कोलैबोरेट करते हैं तो ये समस्या आएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट to answer this question with the mere fact. The first thing is we will be challenging this particular aspect of having a professional civil service. Can we call it a profession? Though it is a profession, but that we don't have universal codes of conduct. We don't have these universal standards. Professionalism in India or Indian civil services may be somewhat different from the professionalism in case of American civil services, or for that matter, Bangladesh civil services. Nowadays, we are talking of market state.
आज हम बाजार राज की बात कर रहे हैं, वेयर द स्टेट इज रिट्रीटिंग. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ पब्लिक मैनेजर्स, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. लोग निजी सहभागिता की बात कर रहे हैं, और कई सारे काम जो है, जो पहले सिविल सेवक के माध्यम से कराए जाते थे, अब वह कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कराए जा रहे हैं. बनारस में पुल बनता है या बन रहा है कैंट के सामने में, उसका एक गर्डर गिर जाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठेकेदार को छोड़ दिया जाता है. तो कहां है प्रोफेशनलिज्म? इंजीनियर इज सेइंग, कीप ऑन रिपीटिंग कि सर यहाँ पे ये आप पुल न बनाइए, वो कहते हैं हम पुल बनाएंगे. इट टुक 13 years फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सामने घाट फ्लाईओवर, which should have been completed in 2 to 3 years. सामने घाट का जो फ्लाईओवर बना है उसको 2 से 3 साल में बनना था, उसको 13 साल लग गए. अब किसका आरोप लगा रहे हैं? नहीं, सब इंजीनियर की प्रॉब्लम थी, तो उसकी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो दीज थिंग्स आर बेसिकली एट द मर्सी ऑफ लॉट मेनी फैक्टर्स. तो इसमें इस प्रकार का जो आपने उत्तर मांगने की चेष्टा की है मुझसे, मैं इस समय असहाय इसलिए हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये, क्या हम लोक सेवा को या प्रशासन को एक व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं? ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से अन्य जो हम व्यवसायों की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दिया, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो आपका लीगल फील्ड हो, या अन्य कोई फील्ड हो. So thank you, sir. There are many questions, but I know, sir, you have to leave, so I think now we should wind up. क्योंकि 3 बज गए हैं. You can send your questions on my email and I will try to reply them. Okay, I'll post these questions, sir, so that would be good. I'm sorry, extremely sorry, students. मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इस समय मुझे 3 बजे वहां पहुंचना है अपने दूसरे काम में. आपके दूसरे जो साथी जो हैं, my professionalism says that I have to also go there and Yes, to perform my ethical duty. Yes, sir. ठीक है. So thank you, sir. But one question which was there by a student, I would like some kind of help from you in that, because they are asking for some content in Hindi on ethics in administration. So if you can make something available, I mean. देखिए, ऐसा है कि मैडम, ऐसा है कि कुछ मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन कुछ पुस्तकें आई हैं. हाँ. पुस्तकें इसलिए भी आ रही हैं कि भारत सरकार ने जब से सिविल सेवा परीक्षा में नीति शास्त्र का एक कंपोनेंट, एक जो है पार्ट ऐड किया है, एक भाग ऐड किया है, तो कई लोग उसको लिख रहे हैं, लेकिन वो कुंजी है, वो गाइड है. दिस वन बुक रिटन बाय पीडी शर्मा, प्रभुदत्त शर्मा ने हिंदी में भी और अंग्रेजी में किताब लिखी है. सत्यनिष्ठा नैतिकता, प्रशासन में सत्यनिष्ठा नैतिकता. अच्छा, ठीक है सर. एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय पीडी शर्मा, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो थे, आई थिंक. तो ये है, और ऐसे और भी जो सामग्री है हम लोग दे सकते हैं. इग्नू का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, उसका जो पाठ्य सामग्री है, वो आप यूज कर सकती है. अभी असल में ये है, हाँ, क्योंकि वो जो आपका e-gyan-course.ac.in जो है, उसमें आप देख सकते हैं कि शायद अपलोड किया हो. नंबर 1 ई-पीजी पाठशाला है, उस पर आप देख सकते हैं. But the content in PG Pathshala, sir, that is in English. I have shared all that. That is the problem. सरकार ने शुरू किया, गवर्नमेंट ने, ज्ञान सिंधु चैनल. हाँ. ज्ञान सिंधु, उसमें देखिए कुछ लोगों का व्याख्यान अगर हिंदी में होगा, मिल सकता है. हाँ, that I'll do. अंग्रेजी में भी, हिंदी दोनों में है. ठीक है. इसके अलावा मैडम जो है कुछ किताबें और अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो ज्यादातर कुंजी के रूप में आई है, गाइड्स के रूप में आई है. सुरेन कटारिया भी लिखते हैं हिंदी में किताबें, जो यहाँ के हैं, जयपुर के हैं, तो उनकी बुक्स भी है, हम पढ़ सकते हैं. और रमेश कुमार अरोड़ा भी जो है, उनका ये आर के अरोड़ा जी. कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, हिंदी में लिख रहे हैं किताबें, वो देख सकते हैं. अब ये है कि इस तरफ बनारस में या बनारस के आसपास इनकी उपलब्धता थोड़ा सा उसमें समस्या है, मुश्किल हो सकती है. ये हो सकता है कि अगर जो लोग यहाँ रहते हैं तो वो विश्वविद्यालय प्रकाशन जा सकते हैं, या और भी जो पुस्तक विक्रेता है उनसे संपर्क कर सकते हैं. ये है मैडम. लेकिन मैम, भाषा तो एक साधन है ना मैडम, भाषा एक बाधक नहीं है. मुझे ये हमारी छात्राओं से कि जो अच्छा साहित्य है
उसमें आपको उसको पढ़ना चाहिए, हम लोग से सहयोग लेना चाहिए, हम लोग आपका मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। आप भागिए नहीं अंग्रेजी से। अगर आज के इस दौर में आपको प्रतिस्पर्धा करना है तो उसका कार्यात्मक ज्ञान तो होना ही चाहिए ना आपके पास। एग्जैक्टली हम सर, लोग की बिल्कुल सबकी सही। मातृभाषा हिंदी है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सीखते ही जो है बचपन से, या आप कहेंगे आप तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, ऐसे कुछ नहीं है। माध्यम तो एक साधन है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का साधन है। तो उसमें जितना आप पढ़ेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा, जितना आप भागेंगे उतना आपको परेशान करेगा। धन्यवाद मैडम। Thank you so much, sir. I must say, despite your busy schedule, you spared your valuable time, and I know that again and again in future, we'll get the same kind of cooperation from you. So we'll keep meeting in this way, sir. And I also want to thank all my colleagues from the Department of Political Science, Dr. Punita Pathak, Dr. Jitendra Lalwani, Dr. Sneha Patel, and all my dear students who have actively participated and posted very relevant questions. And I also assure you that I'll pose these questions to sir, and whenever I'll get response from sir, I'll send it to you. So once again, thank you very much, sir, from on the behalf of the Department of Political Science and from on my personal behalf. So thank you very much. धन्यवाद, नमस्कार सर।